السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس ناول یقین محبت کے ایپیسوڈ نمبر 23 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیپرز پراپر سائن کرنے کے بعد وہ کانفرنس ایریا خالی ہونے لگا۔ وہ پیپرز سمیٹتے لڑکی کو دیکھتے کال کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا جب وہ اچانک خود پر مرکوز نظریں پاتے سامنے دیکھتے شخص کو دیکھتے بولنے لگی، آپ کو ٹھیک دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی؟ کیا مجھ سے مخاطب ہے؟ بلو جینس پر سفید اور بلو چیک شرٹ اور اپنی اچھی خاصی ہائٹ کے باوجود وہ ہائی ہیلز میں خاصی پروفیشنل لگی تھی۔ غالباً آپ یہاں موجود ہیں۔ وہ خالی ایریا کو دیکھتے اسے جتا گئی تھی۔ اوہ، ہم پارٹنرز بھی تو ہیں۔ وہ حوالہ دینے لگا تھا۔ کیا ہم اس بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں؟ وہ مدعے کی جانب آیا، ویسے بھی کل واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سوچتے بولا، جی۔ وہ ہنوز کھڑی رہی تھی۔ میں لفظوں کی ہیر پھیر کا قائل نہیں ہوں۔ اپنے 20% شیئر مجھے بیچ دیں، 10 گنا زیادہ پروفٹ کے عوض۔ وہ سیدھی بات کر گیا، جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کی حالت پوچھی تھی، پھیلنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ چڑ گئی تھی۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ سیدھا مدعے کی جانب آیا تھا۔ اسے آسان لگا تھا لڑکی سے ڈیل کرنا۔ دیکھیں مس، بات یہ ہے، مس نہیں، آئرہ فیاض نام ہے میرا۔ وہ چباتے بولی تھی۔ اوکے آئرہ، آپ تحمل سے میری بات سنیں۔ آپ ہوٹل کا کیا کریں گی؟ دیکھیں، وہ ہوٹل لاہور میں ہے اور آپ اسلام آباد کے رہائشی۔ وہ قائل کرنے لگا، پاگل ہیں آپ؟ میں ہرگز آپ کے آفر قبول نہیں کرتی، اور ویسے بھی وہ آنر اسلام آباد کا ہے، پھر آپ نے کیوں یہاں آنے کی زحمت کی؟ اوہ، اب سمجھ آئی۔ وہ آنکھیں زگردے قریب چیئر کھسکائے مقابل آئی کہ اذہان اس کے عجیب تاثرات دیکھنے لگا۔ کل سے اس لیے تم مجھ پر نظریں گاڑے میری پریزنٹیشن میں بھی خلل ڈال رہے تھے۔ وہ ساری کڑیاں ملانے لگی۔ استغفار، میں نے کب نظریں گاڑی؟ اذہان نے حیرت لیے پوچھا۔ سب پتہ ہے مجھے، اسی لیے مجھے پریزنٹیشن میں انٹرپٹ کر رہے تھے۔ بہرحال میں ہرگز اپنے شیئرز نہیں دوں گی۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا، اذہان نے جائزہ لیتے سوچا تھا۔ ایک منٹ، وہ پلٹی تھی۔ تم 23 کے بھی ابھی نہیں ہوئے ہو، رائٹ؟ اذہان نے حیرت لی اپنی عمر کا اندازہ لگاتے اسے دیکھا، لیکن وہ شاید اپنی ٹکر اس سے بھول گیا تھا۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے مسٹر، ابھی تمہارا MBA کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا، غالباً کیونکہ تمہاری عمر کے حساب سے فائنل سیمسٹر کے دوران تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ ضرور تمہارے باپ کی کمپنی ہے جس نے تمہیں بغیر گریجویشن کے ہائر کر لیا، اور مجھے اپنی ڈگری کمپلیٹ کیے ماشاءاللہ سے 3 سال ہو گئے ہیں، سمجھے بچے؟ تو آئندہ ایسی آفر مجھے نہیں کرنا، آپ سکون سے گھر جاؤ۔ جبکہ وہ تو وہیں حیرت زدہ سا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے تیار ہونے دیکھنے لگی تھی۔ گھر کا سارا سامان وہ اپنے فلیٹ میں آج صبح شفٹ کروا چکا تھا۔ ضروری کپڑوں کے علاوہ اس کا سامان بھی اسی فلیٹ میں سیٹ کروا چکا تھا۔ گلاس وال کی جانب گہری ہوتی خاموش شام کو دیکھتے خالی گھر اور اپنا بیڈ روم اس لمحے اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ نور، وہ خیالات سے نکلتے اس جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اس کے آگے ہتھیلی پھیلا گیا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں اسے ہلکی شیپ میں نفاست سے سیٹ کیے بالوں میں دیکھنے لگی، جو پرشوق نظروں سے ہاتھ پھیلا اس کے وجود میں بے چینی پھیلایا تھا۔ غازیہ، نہیں جاؤ نور، مر جائیں گی، پلیز غازیہ، میری جان، میرا دل نہیں لگے گا۔ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اپنے مقابل کرتے وہ باریک روتی آواز نکالے اس کی نقل اتارتے بولا۔ اس نے میرون رنگ میں بالوں کو کینچی میں جکڑے اس کی سیاہ موٹی آنکھوں پر مڑی سیاہ خمدار پلکوں کو بھیگا سا محسوس کرتے وہ اسے اپنی باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ میں اس گھر کو چھوڑنے پر بس دکھی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ جکڑا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اس کی باتوں پر اسے باور کرواتے بولی، انٹرسٹنگ، کور اچھا کر لیتی ہو۔ غازیہ لب دبائے مسکراہٹ روکنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ تھامتے وہ ڈریسر کے قریب لایا تھا۔ اس کے سنجیدہ تاثرات پر وہ فلو اور اپنی انجان تکلیف دہ کیفیت سے سرخ ہوتی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا کہ نور کو اس کی ہمیشہ سے سکون دیتی خوشبو قریب محسوس ہونے لگی جس کی وہ عادی سی ہو گئی تھی۔ نور جان، وہ دل تھام گئی تھی۔ اس کے لبوں کی نرم سرکشی سرگوشی کان کی لو تک سرخ کر گئی۔ اس سال فیل نہیں ہونا پلیز، وہ کہہ کر لگاتے دل کی بدلتی کیفیت ایک منٹ میں ظاہر کر گیا۔ پچھلی بار تم ایک میں تھی نا، اس بار سارے سبجیکٹس میں ہوں گی۔ اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے نظروں سے دور ہوتے زہرخند ہوئی تھی۔ پیچھے اس کا قہقہ گونجا تھا، ریحا کچھ کھا تو لو۔ وہ اس کے نزدیک فریش جوس اور ڈفرنٹ کٹے فروٹس کی پلیٹ لے کر آئی تھی۔ ثانیہ اس کا ہر لحاظ سے بہت خیال رکھتی۔ بڑی ماما، دل نہیں چاہ رہا ہے پلیز، مجھے وامٹ آ رہی ہے۔ وہ صبح سے آج پھر وامٹنگ کرتے نڈال سی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی الٹیاں کیوں آ رہی ہیں تمہیں؟
सनी बेगम उसकी हालत पर घबराई सी थी। बहरहाल ऐसा खाली पेट बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर वोमिट आ भी रही है फिर भी खाओ। यकदम वो दर्द महसूस किए कराई थी। वो उसके चेहरे का अचानक से मुतगैर होता रंग देखने लगी। रिया, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हारे पापा को गाड़ी निकालने का बोलती हूँ। उसे सहारा दिए बैकग्राउंड के साथ टेक लगा बिठाती घबराई से बोली, मम्मा मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मम्मा मुझे शदीद दर्द हो रही है, आप प्लीज़ आहान को कॉल करें। कहा भी था ना चाहे। बेसुकून सी होती अपनी कैफियत उन्हें समझा नहीं पा रही थी। वो उसे अचानक से शदीद तकलीफ में मुब्तला होते देख तेजी से घबराते बाहर गई थी। दर्द से दोहरे होते उसकी नज़र तानस्ता साइड टेबल पर पड़े अपने फ़ोन पर पड़ी। मुश्किल खिसकते फ़ोन तक पहुँचते वो कांपते हाथों और जान निकलती हालत में धुंधली पड़ती स्क्रीन पर नंबर डायल करने लगी थी। फ़ोन तो उठाए। सानिया बेगम के अभी तक न वापस आने पर वो दरवाजे की जानिब देखते बिस्तर पर पड़ी अब बुरी तरह अपनी तकलीफ पर रोना शुरू हो गई थी। यकलख्त रिसीव होती ईयरपीस से उसकी हमेशा वाली शौक आवाज़ गूंजी, हाथ की जान का दिल नहीं लग रहा। हाथ उसके दर्द में डूबी वो अपनी पुकार पर वो ठटकते चौंकते फिर कोई समझते ऐसा झटकते बोलता कि उसकी रोंदी आवाज़ उसके होश सही में उड़ा गई थी। हाँ मुझे सुने, मुझे लगता है मुझे सांस नहीं। वो बाकायदा अब उसकी रोती आवाज़ में लफ्ज़ समझते परेशान हुआ। रेहा, तुम ठीक हो? मामा पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे छोड़ते वो अभी तक नहीं आई। मैं आज जैसे मर जाऊंगी वरना। वो बहती आंखों से शीट को एक हाथ की मुट्ठी में ले चुकी थी। रिहा, मम्मा कहाँ है? तुम कहाँ हो मेरी जान? मैं बस 5 मिनट में आया। वो फूलती सांसों से उसके रोने की आवाज़ महसूस किए अपनी चीज़ें वहीं छोड़े चाबियाँ लेते तेज़ी से चेयर से उठा। यह मेरी जान, उठने की हिम्मत करे मेरा बच्चा। वो दर्द से दोहरी होते हवासों से बेगानी होते उनके हाथ से निकलती जा रही थी। नाइमा और सानिया बेगम की आवाज़ फ़ोन से महसूस की उनकी मौजूदगी से वो गाड़ी के करीब पहुँचे। थोड़ा पुरसकून होते चलते फ़ोन की कॉल काटते तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर आया था। मुझे फेयरवेल अच्छी थी तुम्हारे बाबा ने। डिनर नोट बाबा की तरफ था जहाँ हमजा नियाज़ी भी मौजूद थे। वो खासे गमज़दा से थे पर वो इस बात पर कायल थे इसकी जॉब का हिस्सा था। वैसे भी वो मेयर सटीन की वजह से भी चाहते थे उसके ट्रांसफ़र जल्दी यहाँ से हो जाए। इस लम्हे वो गैराज में खड़ी उसको गाड़ी से टेक लगाए गार्डन में लगे दरख्तों से टकराती हल्की रोशनी में देख रही थी। तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है कोई? वो धीमी सरगोशी में मासूम लहजे में अचानक से पूछने लगा। नहीं, खुशी हो रही है, वो आंसू खुद मिटाने लगी। मैं जब वीकेंड पर आऊँगा तो मेरे लिए डिशेस बनाना। आंसू जब्त के बावजूद बहने लगे जिसे वो महारत से छुपाते मजबूत बनी बोलते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मैं इनमें ऑयल और नमक ज़्यादा करते तुम्हारा सारा डाइट प्लान ख़राब कर दूँगी। ठीक है, फिर वो रोड पर वो मोटे पेट निकले पुलिस वाले देखती हो वैसा हो जाऊँगा मैं। मुस्कुराते नज़रों का तबादला होते अचानक से वो मौका दिए बगैर खुद में बींच गया। पीछे से ढेर सारी शॉपिंग करना, मेरे लिए भी करना, ओके? उसके बालों में उंगलियां उलझाए उनकी खुशबू खुद में उतारने लगा। खुद के साथ लेकर गए थे कभी खुद कभी मुझे करवाई थी, मैं क्यों करूँ? वो रूंधी आवाज़ में बोली, तुम्हारे कॉलेज की ड्यूज़ कौन क्लियर करता है बताना ज़रा मुझे। वो अपनी आंखें मूंदते थोड़ी सी उसके सर पर टिका गया। तुम एहसान नहीं करते, फ़र्ज़ है तुम्हारा। वो उसके सीने से लगी गहरे सांस लेते उसके शर्ट से उठते खुशबू सांसों में उतारने लगी। ओके, क्या चाहिए मुझे बता दो। बेसाख्ता अपने दिल से लगी इस लड़के के लिए आवाज़ बरामद हुई थी। वो कहते हैं बस तुम। कुछ नहीं, इस लम्हे उसका दिल बुरी तरह टूटा था। यकीन दे दो कि मुझे चंद लम्हे पहले वाली कैफियत को दबाते बोला। कभी नहीं, तुम मुझसे बदला लेते हो, मुझे सर्दी में शावर के नीचे खड़ा किया और तुम्हारी फ्यूचर की प्लानिंग्स के बाद तो कभी भी नहीं दूंगे। वो कल दिन की डाइनिंग पर की बातें याद करते सख्ती से बोली। वो ना भी कहता, फिर भी तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। वो गिरफ्त ढीली करने लगा पर नूर की गिरफ्त सख्त पाई थी। छोड़ दो वरना अभी टाइम नहीं है जो तुम मेरे जज्बात उभार रही हो। उसकी बोझल आवाज़ से वो चेहरा उसके सीने से निकाले घूरने लगी थी। जब फासला पाए अब गाड़ी का फ्रंट डोर खोले सीट पर झुके डैशबोर्ड खोलने लगा। ये पकड़ो। चंद लम्हों बाद वो छोटा बॉक्स उसके हवाले कर गया। क्या है ये? वो हैरानी से देखने लगी थी। ओपन इट। वो खोलने लगी। अंदर चाबियाँ, पेपर्स और कार्ड था। ये क्या है? वो चाबियाँ, क्रेडिट कार्ड और पेपर्स नासमझी से देखने लगी थी। ये मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम ससुर जी से अपनी ज़रूरत की किसी चीज़ के पैसे नहीं लोगी। बाप है वो मेरा, तमीज़ से पुकारे। वो उंगली दिखाते वार्न कर गई। मिस हाला नूर, ससुर जी को ससुर नहीं कहूँ तो क्या चीफ मिनिस्टर जी कहूँ? वो तब किया था। आप एक रूड प्लस अजीब इंसान है।
وہ اس شخص کے بدلتے چہرے سے دنگی تو ہوتی تھی۔ یہ پیپرز اور چابیاں وہ اسٹامپ پیپرز دیکھتے عجیب سے ہونے لگی۔ یہ پیپرز میں نے ایک گھر خریدا ہے اس کے ہیں، اور یہ چابیاں میرے فلیٹ کی جہاں ہم رکے تھے، اگر تم وہاں رہنا چاہو تو۔ وہ آدمی انداز میں بات ختم کرتے بولا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں یہ سب کا کیا کروں گی؟ اس کی حرکتوں پر اور چیزوں پر ششدر تھی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سب، وہ یکدم ہنسیانی انداز میں بولتے دور پھینک چکی تھی۔ نور کی حرکت تھی یہ، اس کا کندھا دبوچ گیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے احسان، مجھے کیوں دے رہے ہو یہ سب، رکھو اپنے پاس۔ وہ گہرا سانس کھینچ کے رہ گیا تھا۔ پاگل لڑکی، بیوی کو نہ دو تو رشتہ داروں کو دو جا کر کیا؟ وہ دانت پیس کیا تھا۔ تمہارے ٹرانسفر میں کس کا ہاتھ ہے؟ وہ خوف زدہ سی بولی۔ کسی کا نہیں، جس ایریا میں ہوئی ہے وہاں کا اے سی ریٹائرڈ ہو گیا تھا، اور میری ٹرانسفر کا مسئلہ تو کب سے چل رہا تھا، سیٹ خالی تھی بس اسی لیے وہاں ہو گئی۔ بہرحال وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ ناؤ سے گڈ بائے۔ اس کے مقابل ہوتے اس کا دھیان اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ گڈ بائے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ساکن سی آنکھوں سے جھانکتے، بے خیالی میں نیچے بکھری چیزیں دیکھتے بولی تھی، واو امپریسو، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ اسے کھینچتے قریب کرتے گڈ بائے کے مطلب اچھے سے سمجھانے لگا تھا کہ وہ سرخ سے ہوتے اس کے غربت میں ہر فکر کے حال کے لیے بھلا گئی تھی۔ سرد قطرہ قطرہ پگھلتی رات ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتے گزری۔ چند لمحوں پہلے اذان کی آواز سے وہ مسجد نماز ادا کرنے چلا گیا۔ فجر کی نماز ادا کیے وہ دعا مانگتے، اس کی زندگی اور نئی آنے والی زندگی کی خیریت کی دعا مانگتے، چہرے پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ وہ رات سے تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس لمحے عورت زندگی اور موت سے لڑتی ہے، یہ بات اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ ہاسپٹل کی راہ کرتے مختلف وسوسے ذہن میں ابھر سے رہے تھے۔ کاش وہ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ ہمت کے رخ کر گیا۔ آہن کتنی کالز کی تمہیں؟ ثانیہ بیگم کے اپنے پیچھے آواز سے وہ رخ موڑ گیا تھا۔ ماما پتہ نہیں چلا۔ وہ سکوت پاتے ہاسپٹل رومز کا جائزہ لینے لگا۔ پتہ رکھنا تھا پچھلے آدھے گھنٹے سے کوئی مسلسل اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہے، اور بابے جانے کہاں غائب ہیں۔ وہ اچانک بول گئی، مما اندازہ نہیں۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہی جو تم سمجھ گئے ہو۔ وہ مسکراتی اس کی پیشانی چوم گئی تھی۔ یا اللہ ماما، آپ سچ؟ خود پر ضبط کرتے انہیں زور سے گلے لگاتے اپنی کیفیت پر دل تھام گیا تھا۔ مبارک ہو میری جان۔ وہ مسکراتی اس کی خوشی پر اس کا کندھا تھپک گئی۔ آپ کبھی؟ وہ نمی خود میں اتارتے مسکرانے لگا تھا۔ بیٹے سے تو مل لو، پھر خوشی کا اظہار بھی کر لینا۔ بیٹا؟ وہ زیر لب دوہرا گیا۔ نعیمہ بیگم اس کے سامنے کمبل میں لپٹا نازک سا وجود سامنے لائی تھی۔ وہ شکن زدہ کپڑوں میں تھا۔ لمحوں میں اپنی ساری تھکاوٹ وہ منظر دیکھتے ظاہر ہوتی لگی۔ اس کی جانب نعیمہ بیگم نے مسکراتے قدم بڑھاتے کانپتے ہاتھوں سے وہ اس کو گود میں لے گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے بے یقین سا اس کے نقش نرمی سے چھونے لگا۔ اس کی ننھی سی انگلی کھولتے اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ اس لمحے آنسو کا قطرہ اس ننھے وجود کے چہرے پر گرتے وہ کسمساتے مسکرا گیا۔ آہن کی مسکراہٹ کو سوچتے گہری ہوئی۔ میں اسے پہلے دیکھوں گی۔ اس کی سرگوشی قریب ہوئی تھی۔ میری جان، یہ احساس بھی آپ کی پاگل ماما کی جگہ بابا کو حاصل ہوا ہے۔ اس کے گلابی گال پر چکتے لب رکھ گیا کہ وہ خاموشی میں اس اچانک رونا شروع کر دیا تھا۔ ہاں میرے شہزادے، بس ماما کو پاگل کہنا برداشت نہیں ہوا۔ وہ جھلانے لگا، مگر اس کی باریک روتی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ آہن مجھے تو اسے بھوک لگی ہے۔ ثانیہ بیگم کے حوالے کیے وہ اسے تو بھول ہی گیا تھا جب وہ بے چینی سے دریافت کرنے لگا، مما ریحا کیسی ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا، ریحا ابھی کچھ دیر پہلے روم میں شفٹ ہو گئی۔ سکندر اور وہاد صاحب اس لمحے ہاسپٹل آ گئے تھے۔ اذان اس کے کان میں وقوع دینے کے بعد پورے وارڈ میں مٹھائی بانٹتے اپنی خوشی کا اظہار کیے۔ وہ مجھ سے ملنے کو منتظر تھا جو اسے اس خوشی سے آشنا کرا گئی تھی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر کی اجازت سے وہ اس کے روم میں داخل ہوئے۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر ابھی بے ہوش تھے۔ جب وہ اپنی پیشانی پر شدت بھرا لمس محسوس کیے، وہ اسے محسوس کرنے لگی۔ ہان کی جان۔ اپنے لمس کی آشنائی پر اس کی سرگوشی میں ڈلتی آواز سے وہ دوبارہ بولتے جھکا۔ وہ اس کی پیشانی پر مسکراتے پھر سے لب رکھ کے پیچھے آتی چاپ اور آوازوں سے اس کے پیر سے پیچھے ہوا تھا۔ ریحا؟ نعیمہ بیگم کی پکار سے وہ موندی آنکھیں کھولنے لگی تھی۔ مما میرا؟ لاشعوری سی کیفیت میں بے ساختہ اپنے پیر پر ہاتھ رکھتے پوچھنے کی صحیح میں تھی۔ بیٹا ہے۔ ثانیہ بیگم اس کے قریب لائی تھیں۔ آہن کے کہنے سے اس نے کبھی بھی پہلے چیک اپ نہیں کروایا تھا۔ بیٹا ہے یا بیٹی؟ بہرحال ریحا کی تکرار بیٹے پر ہوتی تھی، اور اس کا جواب، پتہ نہیں تم عورتیں خود عورت ہو کر بھی پہلی اولاد بیٹا ہی کیوں چاہتی ہو؟ اور ریحا کا جواب،
मैं कोई फ़र्क करने वाली माँ नहीं हूँ, पर अब तो मैंने बेबी बॉय का नाम डिसाइड कर लिया। बेबी की चेंजिंग नहीं हो सकती। वो ख्यालात से निकली जब नाइमा बेगम उसकी गोद में थमाती कि वो सिमटी सी थी। मामा मैं कैसे पकड़ूं? वरना माँ के लिए धुंधली पड़ती नज़रों से मंजर नज़रों में उतार रही थी। ऐसे मेरी जान, मैं बताती हूँ, पकड़ो इसे, तुम्हें ही संभालना है। वो उसके सर के नीचे हाथ रखवाते ही उसे समझाने लगी। वो छोटे से हाथ का अंगूठा मुंह में लिया था। मामा ये कितना प्यारा है। मैंने आंखों से गुलाबी रंगत लिए चेहरे को देखने लगी थी। उसके बाल भूरे से थे। बेसाख्ता उसका बाप याद आया था। वो सामने देखने लगी जो वह हाथ साहब से मुस्कुराते बातों में मसरूफ़ था। मामा आप पास रहे। वो उसको छूने से भी डर रही थी जब नईमा बेगम ने उसकी हरकत पर तकिया उसके पीछे दुरुस्त किए मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। इस पुरसकून लम्हे के लिए कितनी तकलीफ सही थी। वो गहरा सांस खींचती उसके सुर्खों सफ़ेद छोटी सी पेशानी, चेहरा और हाथ अपने हाथ में लेते नरमी से चूमने लगी थी। मेरी जान तो आज सही से समझदार सी हो गई है। रिहा ने मां बनने की तरक्की कर ली है। जान के बाद से वो सानिया के सहारे एक से टेक लगाते गोद में थामे अपने वजूद के हिस्से को देखते नम आंखों से उसे कसर करीब महसूस किए मुस्कुरा गई थी। उसे डिलीवरी के दौरान ही पता चल गया था, फिर भी एक अच्छा था। वह सुर्खसी इसी को ढूंढने लगी जो सामने दीवार से टेक लगाए। मुस्कुराती नजरें उसकी हरकत पर गाड़े उसकी जानिब साई के उछाल चुका था। वो सटपटाती नजरें मोड़ गई। इसका नाम क्या रखना है? सानिया बेगम ने उसे गोद में लेते प्यार करते पूछा। इसका नाम रिहा रखेगी। उसकी मौजूदगी अपने साथ महसूस किए वो मजीद चेहरा झुका गई थी। वो जानता था वही उसका नाम रखना चाहती है और वही इख्तियार भी उसे देना चाहता था जिसने इतनी तकलीफ उसे दुनिया में लाने के लिए उठाई थी। रिया क्या नाम रखना है? मीचा ने मुस्कुराते पूछा। वो उसकी जानिब रुख कर गई जो मुस्कुराते सर हिला गया। अरहान, वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली। अरहान बहुत प्यारा नाम है। अरहान से मिलता जुलता अभी वो बोल ही रहे थे अजहान की वीडियो कॉल आने लगी थी। मुझसे ज़्यादा अब आप जूनियर अरहान को प्यार करेंगे। सानिया बेगम की गोद में बच्चे को देखते अपनी तकलीफ दबाए हाफ के भरे लहजे में बोल गया। ये तो है। सानिया बेगम उसे चूम गई थी जो नींद में बार बार वक्फे वक्फे से प्यार की बरसात होने पर हड़बड़ा सा जाता। वो सब इस जानिब मुतवज्जे थे। यू कम्प्लीटेड मी। उसका हाथ थामता सरगोशे में बोल गया। इस लम्हे से सबकी मौजूदगी में वो सुर्ख चेहरा झुका गई थी। आज नहीं आपको ऑफिस जाना? मुझे याद आते खफा चढ़ा मोड़ गई थी। आज तो अभी मेरा बेटा आया है। वो उसका ड्रिप लगा सूझा हाथ थामते उसकी पुश्त पर अपने लब रख दिया था। हाँ, वो सबकी मौजूदगी में गड़बड़ाते हाथ खींच रही थी। आन की जान से सही से थैंक्स भी नहीं कर सकता। चलो उधार रहा। वो सबकी मौजूदगी की वजह से मजीद सुर्खसी होते उसे नजरें चुराने लगी थी। अरहान क्यों नाम रखा तुमने? कभी मुझे बताया भी नहीं। वो कुछ सोचते पूछने लगा। मैंने खासा सोचा था ये नाम, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया। अगर बेटी होती तो इसलिए मैं अपने दिल में छुपाए रखा। वो हम दोनों के नामों का मिक्सचर है और मेरे नाम की शुरुआत अरहान आप पर ख़त्म नूर। वो नाश्ते की टेबल पर से बुला गए। जी बाबा। बेटी तेरी आंखें क्यों सुर्ख हुई हैं? रात को ठीक से नहीं सोई? उसकी नाश्ते की प्लेट वैसे ही पड़ी देख रहे थे। बाबा नहीं, बस यूं ही। अब वो क्या बताती। जगह बदलने की वजह से उसे अपने इतने साल गुजारे घर में भी नींद नहीं आई थी। वो अपनी कैफियत पर मुस्तरब थी। अच्छा गाजियान की कोई खैरियत की कॉल आई नहीं? वह बात ख़त्म करते बोले। वह लेट पहुंची होंगे इसलिए शायद नहीं कि मैं लेट हो रही हूँ। वो कुछ सोचते पलटी थी। कहो। उसके बोलने से पहले मुस्कुराते बोले। मैं प्रॉपर ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ ताकि टाइमिंग का मसला आपको भी ना हो। वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली। तो इसकी इजाज़त तुम गाजियान से लो। वो कुछ सोचते बोले। वो तो चाहते थे मैं ही नहीं सीख रही थी। अफसरदा हो गई। वो बिल्कुल इस पर डिपेंड करने लगी थी, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ गया। नूर पर्दे नहीं हटाओ। वो तेज़ आंखों में झुकती रोशनी से बोला। नूर वो कसमसाते करवट लेटे उसे ढूंढता कि कमरे में खुद को बिस्तर पर तन्हा पाया। रात 3 बजे के करीब वो पहुंचा था और बेखबरी की नींद में ऐसा सोया कि वो 8 बजे आँख लगी थी। शिट, उसे कॉल भी नहीं कर सका। वो फिलहाल घर अलॉट होने तक अपने अंडर ट्रेनिंग वाले नॉर्मल सर्वेंट क्वार्टर्स में ही ठहरा था। खुद का आदी बना दिया है। फ़ोन टटोलते टाइम देखा 9 बज गए थे। बाल काला टाइम शो कर रही थी। वो कॉलेज हो गई लेक्चर में। फ़ोन बाद में करने का फैसला किया। वो ज्वाइनिंग की तैयारी करने लगा। ये सब क्या है? अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलते वो सीधा अपने ऑफिस में आया था जहाँ फूलों के मुख्तलिफ बुके देखते वो पीछे खड़े अपने अंडर महकमे के 3-4 लोगों से पूछने लगा। सर वेलकम आपका। कांस्टेबल चहकते करीब आया था।
और इनको किस दुकान से सुबह सुबह चूना लगा कर लेकर आए हो, वो गड़बड़ा गया था। नहीं सर, ये तो लोगों का प्यार है आपसे। वो उसके चेहरे खिसकाते बोला। अच्छा, एक दिन में मुझसे प्यार भी हो गया। मिलना चाहूँगा ऐसे लोगों से जो फूलों की दुकान मेरे ऑफिस को बना गए। वो तीखे लहजे में बोलते टेबल से फूलों की पत्ती हटाते फाइल्स देखने लगा। वह शायद वो गड़बड़ाया। ये सब तो वो धमका कर ले आए थे। सब पता है मुझे, ये सब वेस्ट होने से पहले देकर आओ, काम आ जाएंगे किसी के जनाजे में। वो बेतनाई बरतते बोला। अस्तगफुर सर। वो तो उसको देखते हैरत सदा सता। सर, दरअसल लोग आपकी अमल से खुश हैं, लोगों को आप अच्छे लगे और हमें भी। वो बत्तीसी नुमाया करते बोला। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे खामखा मक्खन न लगाओ। वो फाइल से सरसरी नजरें उठाते बोला। आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं चाहिए मुझे अपने ऑफिस में। वो उसको इम्प्रेस करता अपना सा मुंह लेकर रह गया था। वो मुसलसल आधे घंटे से कपड़ों की सिलेक्शन में मसरूफ थी, लेकिन दिमाग के अकॉर्डिंग कुछ मिल ही नहीं रहा था। मामा बिना ये तारे मोती वाले कपड़े सिलेक्ट करना वाकई एक मुश्किल काम है। बनिस्बत कोई भी रंग की टी शर्ट लो और कोई भी जीन्स, लेकिन यहाँ तो ट्राउज़र की मैचिंग रहता। दुपट्टे का रोला बकरा, ब्लैक और वाइट, नहीं कुछ और। मैं झंझलाते मैचिंग में कंफ्यूज थी। ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। नहीं, ब्लैक और ग्रे भी डिसेंट ही लगता। और रैक्स में लगे हैंगर्स पर शर्ट्स देख रही थी। अपने पीछे से आती आवाज़ पर लाशऊरी में बोली थी, ये शर्ट चेक दिस, अच्छा मैच है। वो एक शर्ट निकालते सामने आते थमा गया था। वो एकदम उसकी मौजूदगी से हैरत ज़दा सी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब हद हो गई अब तो। वो कुछ सोचते हुए से बोलते रूबरू हो गई थी। क्या मतलब है इसका, मैं समझा नहीं। हैरान हो गया था। साफ रंगत की आमी लड़की को मैरून चेक शर्ट और ब्लू जीन्स में, बालों को ऊंचे से रफली जूड़े में बांधे बेसाख्ता हुआ झरझरी ले गया। उसे इतनी सर्दी में बगैर स्वेटर और जर्सी के देखते, जबकि खुद वो करे हाई नेक और ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही जैकेट पर मफलर भी लपेटे था। तो मुझे मुसलसल स्टॉक कर रहे हो, उसकी चुपती आवाज़ से वो होश में आया। हाल में मिसाइला ये शॉपिंग मॉल है जहाँ हर बंदे को शॉपिंग का हक हासिल है। बदू बदू जवाब दे गया था। गर्ल्स काउंटर पर वतन से बोली, क्यों मेरी माँ बहन नहीं है जिनके लिए मैं नहीं कर सकता। वो अब शदीद उसकी बात पर हैरान हुआ था। मतलब उसका दिमाग कहाँ पहुँच रहा था। ठीक है करो, लेकिन मैंने मशवरा नहीं मांगा। आई हैव माई ओन ड्रेसिंग स्टाइल। मैं हैंगर से मैं तो उसके थमाई शर्ट रैक में लटका गई थी। मैंने तो सजेशन दिया था, लेकिन आप तो जाने क्या समझ गई। वो बेनियाजी से कहते अब जरा दूर जाते अपने शर्ट्स देखने लगा। नहीं, एक मिनट, समझने से क्या मुराद है तुम्हारी। सेल्स बॉय अचानक मुतवज्जो हो गया था उसकी तेज़ आवाज़ से। मैम, एनी प्रॉब्लम। यस, लड़का मुझे मुसलसल कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर स्टॉक। नथिंग, आप काम करें, मैं देख लूँगा। ये थोड़ी अपसेट है। आप ध्यान नहीं दें, शॉपिंग नहीं कराई तैसे रिएक्ट कर रही है। वो शशता से कुछ बोलती है कि उसकी बाजू खींचते कदरे परे कपड़ों के ऊपर मार लिए रैक के करीब ले गया था। वॉट, क्या था ये, अब मुझे यकीन हो गया तुम्हारा ऑफर देना और ये। उसके होंठों पर हाथ जमा गया था। चुप, एकदम चुप। वहाँ के दिखा गया। जानती है अभी सिक्योरिटी मुझे बाहर निकाल देती है। मैं आपको कहाँ स्टॉक कर रहा हूँ। यहाँ से जाते घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता था। आज वो मुझे मेरे भतीजे की खुशखबरी मिली है। मैं सिर्फ अपने न्यू बॉर्न भतीजे की कुछ शॉपिंग करने आया था। वे भी रैक्स ढूंढते मुझे आप नजर आई। दैट्स इट आयरा। अब आप कुछ बोलेंगी नहीं, गिल्ट फील कर रही हैं। वहाँ के पहला तो उसके हाथ की जानिब इशारा कर गई जो उसके मुंह पर जमा था। ओह सॉरी। वह फौरी हटाते खिजल सा हो गया। हटो पीछे, कल जैसे डायरेक्ट तुमने डीलिंग की बात की थी ना, वो भी मुरब्बती देखते मैं कुछ भी सोच सकती थी। वो लब दबा गया था जब वो पलटी थी। और वैसे भी इस मॉल में बेबीज काउंटर थर्ड फ्लोर पर है। ओके थैंक यू। वो सर हिला गया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे जगते दोबारा मुखातिब कर गया था। हेल्प कर देंगी, वगैरह खींच गई थी। दिल तो चाह रहा था कह दे किस खुशी में। बहरहाल वो सर हिला गई। पिंक, नो, बेबी बॉय है। ब्लू अच्छा लगता है। जहान ने तीसरा उसका सिलेक्ट करता ड्रेस भी रद्द किया था। खासा तजर्बा है आपको। उसकी बात पर तारीख सा साया लहराया था। वह तकलीफ से पाने लगा। आज उसका बच्चा अरहान से कुछ माँ बड़ा होता। उसकी मुसलसल चतुर जबान से वो बस सर हिला रहा था। वह छोटा बच्चा है, ये अजीब ही कॉन्सेप्ट है। जब कितने क्यूट होते हैं ना बच्चे। इन पर हर रंग बल्कि गुलाबी से तो होते हैं, गुलाबी ज़्यादा प्यारा लगता है। वो मुस्कुराते बोली थी, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, लेकिन मेरी तरफ से इनकार है, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं करती। हटो पीछे। उसकी एक्सरे करती नज़रों से उलझती वो परे हुई थी। आप गलत रंग क्यों देती हैं, सुन तो ले। अजान ने कदम मोड़ते उसके सामने जाते रुका। क्यों, मुझे तुम्हारी डील मंजूर नहीं है। उफ, अजान सर पर हाथ मार गया। मुझे डील की बात नहीं करनी। तो फिर हैरानी कम कर गई थी। चार आप
यूनिवर्सिटी की ज़बान ना अपने बॉयफ्रेंड्स तक ही महदूद रखो। मेरे साथ नहीं, बड़ी हूँ सिस्टर आप ही कह सकते हो, वो उंगली से पॉइंट कर गई। उफ, आप कितना बोलती हैं बहन जी, मेरी बात तो सुन ले, वो तब किया था। बहन जी मतलब मैं तुम्हें कहाँ से बहन जी लगती हूँ? वो सदमे में अपना हुलिया छोटे रक्स के नसब शीशे में देखने लगी। खुद ही तो कहा था अभी, वो मुट्ठी भींच गया। मैंने अपनी सिस्टर का कहा है बहन जी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था मेरे एक्सीडेंट वाले दिन आपने मेरी मदद की। मेरी जान पर कट से आपका मुझे पता चला था। एक लड़की ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। कल जब आपने मुझे कहा आपको ठीक देखकर खुशी हुई, मुझे एक शबीह सी दिमाग पर लहराती महसूस हुई थी। वो दरमियान में अचक गई। एक जिम्मेदारी का शहरी सबूत था वो बस, जो कई लोगों की जगह आपने अदा किया। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जब मैं उस लम्हे में किया था, मैंने सोचा था मैं बगैर अपनी ज़िंदगी में मुझसे सरजद हुए वाले गुनाहों की माफ़ी मांगे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन आपकी वजह से इस टाइम यहाँ मौजूद हूँ। सो थैंक यू मिस आयरा पियास। मैं नहीं जानता था वो लड़की आप हैं। आपसे मिलकर मुझे आपका शुक्रिया करने का मौका मिला है कि आपके ऑक्सीजन के पैसे मैं अल्लाह को पे कर रही हूँ। वो संजीदगी से बोली, जी क्या क्या मतलब? वो तासुब हुआ। मेरा मतलब है अल्लाह से शुक्रिया अदा करें, आपको सांसें देने वाले वो हैं। वो उसको देखते संजीदगी से बोली, वसीला तो आप थी ना। वैसे भी किसी ने कहा था बच्चों में मैनर्स नहीं है, वो समझते। कुछ याद आते लबों पर मचलती मुस्कुराहट दबाते बोला। उसके लाहौर में शॉपिंग मॉल की मुलाकात का हवाला देने पर तेजी से बोली, आपकी शॉपिंग हो गई तो मैं चलती हूँ। रुके, साथ में चलते हैं कि आप कुछ टाइम इंतज़ार कर सकती हैं? लेकिन मैं क्यों? वो दांत पीसती बोलती कि तेजी से नज़रों से ओझल हो गया था। वो इस्लामाबाद काउंटर की जानिब पे करते शॉपिंग बैग थामते उसके साथ आया था। वो मॉल से इकट्ठे निकले थे। मिलकर अच्छा लगा। अजान के बाद पर वधू वधू बोली, कल अजान आपसे भी एक अच्छी मुलाकात थी। अजान ने मुस्कुराने पर एक दफ़ा कहता वो बाहर निकलते पार्किंग में अब सर्दी महसूस कर रही थी। जल्द से जल्द वो गाड़ी तक पहुंचती कि उसकी आवाज़ दोबारा पलटी, आयरा जी। वो कंधे हाथों से मसलते पलटी, ये आपके लिए हो सके तो इसका इस्तेमाल आप अभी कर सकती हैं, ज़रूरत है इसकी अभी। एक शॉपिंग बैग उसकी जानिब बढ़ा गया था। मैं क्यों रखूं? वो कशमगी नज़रों से अब खूने लगी थी। यू रियली नीड दिस, समझ ले मेरी दोबारा मदद का फेवर है। मज़ीद मैं कुछ नहीं कहूँगा। टैक्सी। वह तब तक टैक्सी ले चुका था। वो बैग थामे थी जब अपने सामने गाड़ी रुकती महसूस हुई। बैठो। वो मुँह खोले थी। मैंने कहा बैठो। अब उसकी आवाज़ मज़ीद तेज़ थी। वो बैक सीट पर बैठते उसे देखते लब हिलाए थे। मेरी गाड़ी खड़ी थी। वो उसकी मौजूदगी का यकीन कर रही थी। फ्रंट सीट पर फॉर्मल ड्रेस में उसका गार्ड था, जबकि खुद वो बैक सीट पर था। क्या कर रही थी उस शख्स के साथ? वो शॉपिंग बैग मुट्ठी में भींच गई। ये सवाल मेरा होना चाहिए था। कब से हो तुम यहाँ? वो जरा उसकी जानिब मोड़ गई थी। कल पोस्टिंग हुई मेरी यहाँ। व्हाट? वो चिल्लाई थी आहिस्ता। गार्ड फ्रंट मिरर से उन्हें देखने लगा। सॉरी। वो उंगली होठों पर रख गई। उस शख्स के साथ क्या कर रही थी? वो अपना सवाल दोबारा दोहराने लगा। डैड ने होटल्स में शेयर्स लिए हैं, पार्टनर है। अब तुम बताओ घर क्यों नहीं आए? मानी को पता चला तो जहाँ हो। वो एक साथ सवाल कर गई थी। पहली बात का जवाब दो, वो पार्टनर था तो शॉपिंग मॉल में क्या कर रही थी? डोंट से, तुम भी मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो मुस्कुराते बोली, शट अप। उसके साथ आइंदा ना देखो मैं तुम्हें। वो सख्त लहजे में बोला, ऐसा क्या है गाजी? ही इज़ अ नाइस मैन। वो चंद मुलाकातों में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक बोल गई थी। एक लड़के से चुपके निकाह किए हुए है। वो आन के फ्लैट की मुलाकात याद करते बोला, निकाह ही किया था, कुछ जुर्म तो नहीं? गाजियान घूर गया था। ओ आई सी, इसलिए झूठ बोला। अपने बच्चे की शॉपिंग मुझसे करवा रहा था। वो बड़बड़ाई थी, तुम घर क्यों नहीं आए? और नूर? वो कॉफ़ी शॉप पर थे जब उससे पूछने लगी। अरे मैं अभी सेटल हो जाऊँ, 1-2 दिन तक सिविल लाइन में घर अलॉट हो जाएगा मुझे, फिर मम्मा को वहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। तुमसे भी मुलाकात इसलिए की तुम्हें उसके साथ देखकर। फिलहाल मम्मा को पता नहीं चले मैं इस्लामाबाद में हूँ। उन सब में अचानक ऑफिस के कपड़ों पर छिलकी थी। मैं साफ करके आया। वो मुझे सवाल पूछती, उसको उठते देख खामोशी से सिप करने लगी। वो कॉल लॉग चेक करते मायूस होने लगी। नूर एक कॉल कर लो। वो मुझे बता नहीं सकता था मैं पहुंच गया हूँ। वो दलीलें देने लगी। नूर तुम भी तो बीवी हो, ईगो भी कोई चीज़ है। पर उसके आगे वो नाखून चुबाते सोचने लगी। वो पलंग खोते फ़ोन की जाने मुतवज्जो हो गई थी। वो मुस्कुराते उसका फ़ोन उठा गई थी। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? फ़ोन कान से हटाए समझने लगी। कौन? ये गाजियान का नंबर। वो नंबर कॉल करने लगी। यस, गाजियान का ही नंबर है। ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? जारी है। तो ये बस कैसे लगे आपका एपिसोड? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.